శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పగలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సభాంధవస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది.
చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైకానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே வைகானச ஆகம விதிப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியவாச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த திரு கல்யாண வைபவத்திலே தொடர உள்ளது. அன்ன பூரணி அருள் நிறைந்த மலை, ஆனந்தம் நிறைந்த அழகன் மலை, இயற்கை வளம் நிறைந்த ஏழுமலை, ஈசன் அருள் பெற்ற மலை, உலகெல்லாம் உயர்ந்து ஓங்கும் மலை, ஊன் உணவுகள் தவிர்க்கும் மலை, என்றும் செல்வ வளம் குறையாத மலை, ஏழு உலகமும் போற்றி வாழ் திருமலை என்று அந்த மலையப்பன் சுவாமியை இதோ இந்த நன்னாளிலே அச்சாரூபியாய் நமக்கெல்லாம் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மலையப்ப சுவாமி. மலையப்பன் சுவாமியும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாரையும் இந்த SVBC மூலமாக சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, இதோ விஸ்வக் சேனலின் ஆராதனை தொடங்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. शुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोमसद्यामित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान्यभुषा वृद्धगिन्तः सदन्ति वेमसुरदस्य वीराः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निर्ममगुणसिन्धुरनित्यलक्ष्मे समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्च्यासक्तभक्तौ करक्षे निवसतु हृदये मे स्वाङ्ग्रभक्तिं विदन्वन् शुक्लाम्बरधरं विट्टं तदवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुधनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रेङ्गृगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री मृदयोर्बोधे ध्रुवाणी धर्मजन्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे हृदस्यामोर्धगस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं यात् ओम भूः
अद्यमया पूर्वोक्त एवं नवजयविट्टः जामस्यां सुपदो अस्कदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं सिद्धिपुण्यावाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दारादत्तमानसेषु सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अभोमिगृण्डं प्रतिमादिगच्छे ऋणोमि दत्ताकुं सुरकुं सुधर्म इदमापच्यमाचपदमाज्यान्ताज्यान्तमाशुमाचपदमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वृणये सहस्रं यज्ञयाः पाश विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्वविदोदविष्टरुष्मे देव अमुञ्चन्तमरुतस्वस्य ओं भो वृणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतत्सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेजोजस्मात्पदामहे त्वा विश्वे च दात्मन्महेदोनशम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्ता प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनितान्तदातु ओं भूस्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः विश्वक्षेणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतत्सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्ब्रणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्मा सुस्वद प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तगोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम यन्तगोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम यन्तगोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यदा विष्टुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्टुर्विजक्रमे त्रयधानतदे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पुष्कतेदो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्वयुज्यस्तकाः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्कन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवोज कृपाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्जदित्राः स्तरैरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनो बिर्वसेमधवैतं यदाजः शतमेन शरदान्ते देवायत्राणश्चक्रादरसन्तनूनाः पुत्रा सौगत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निषिता यद्गन्तोः आदितिर्झोरतिरन्तरिक्षं मदितिर्मातास्य पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनः आदितिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपद्युषं यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रण्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायस्यां स्मृतिनो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं पुण्यावादस्तुं प्रवन्तो कृणे स्वस्तिर्तिं प्रवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आभोजट्टामजोपस्थानवोर्जेदातन महेरणाय चक्षुषे जोवत्सवदमोरदस्तस्य माजगदेनः उषदेन मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्सक्षजाय जन्मद आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सायत्मा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सुपुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भणो यत्ते पवित्रमच्यसे अग्नेवतमन्तराः ब्रह्मतेन पुणेमहे उपाभ्या देवसविदः पवित्रेण ध्वेन च पावमानिर्यो अद्येति ऋषिभिः सम्प्रतकुम्भ्रसो सर्वगं च बोधमस्यादि स्वतितं मातरिष्मण पावमानिर्यो अद्येति ऋषिभिः सम्प्रतकुम्भ्रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षैरकं सर्पिर्मदोदकं
पावमाने स्वस्थजनेः सुतगायुकृतसुतः ऋषभिः संवृतोरजः ब्राह्मणेष्वमृतकुंहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामगुम्यरण्मयः तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म मुनेमहे इन्द्रस्वरेते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समेत्य यमो राजा प्रभुणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जगन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ते गातुपेक्षितं सन्नोऽस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यज्ञमधर्मार्जयन्तामदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजदाने हस्मान् स्वामे सोहनमेवोपमानः हृते न्यूनं प्रदन्नो चतस्मात् सन्नयेतुपदे सञ्चतुष्पदे अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यावसन्न सकासुसे भजेति नः। वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखदास्थान प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। திருமலை வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. ஐயங்கள் தீர்க்கும் ஐயன் மலை, ஒற்றுமையின் உயர்வை காக்கும் மலை, ஓம் என்ற பிரணவ ஒளி ஒலிக்கும் மலை, ஔஷத மூலிகைகள் நிறைந்த மலை. அப்பேற்பட்ட அந்த திருமலையில் மலையப்பன் சுவாமியாக நமக்கெல்லாம் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நமது எம்பெருமான். அவரனுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தில் இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவதானியங்களை சேர்த்து புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து அந்த தேவர்களை எல்லாம் அந்த கைங்கரியத்திற்கோசரம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அந்த அற்புதமான கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம். பக்தர்களே, வித்தகன் என்றால் விசித்திரமான சக்தி உள்ளவன், மாயன், மாயன், ஆச்சாரியப்பட்டத்தக்க பராக்கிரமம் உடையவன், அற்புதன், வியக்கத்தக்க செயல்களை செய்பவன் என்றெல்லாம் பொருள். வேம் என்றால் பாப்பங்கள் போய பிழையும் புகு தருவான், நின்றனவும் தீயினால் தூசாகும் என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடுகிறாள். வித்தகன் வெங்கடநாதன் என்ற திருநாம சங்கீர்த்தனம் செய்தால் பாப்பங்கள் எரிந்து தூள் தூளாகி சாம்பலாகும் என்று ஆண்டாள் உபதேசம் செய்கிறாள். வெங்கடவாணன் என்றால் கலியுகத்தில் பூலோக வைகுண்டனாக திருவெங்கடம் என்னும் திவ்ய கஷேத்திரத்தில் நித்திய வாசம் செய்பவன், நன்கு இன்பமாக வாழ்பவன். திருவேங்கடவன் பரிபூர்ணன், பிராணன், முழுமுதற் கடவுள், பரம பொருள் என்று பொருள் கொள்ளலாம். துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே தற்போது கலியுகத்தில் அர்ச்சா அவதார மூர்த்தியாய் திருவேங்கடநாதன், ஸ்ரீனிவாசன், ஏழுமலையான், கோவிந்தன் என்னும் பல பல திருநாமங்களோடு திருமலையில் ஸ்ரீவராக கஷேத்திரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிறான். பிள்ளை தமிழுக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுத்தவர்தான் பெரிய ஆழ்வார். நம்மை பெற்ற யசோதையை மாறி
குழந்தை கண்ண பிரானை தொட்டிலில் இட்டு தாலாட்டு பாடும் அழகே அழகு. குழந்தை கண்ணன் தவழ்ந்து புழுதியில் விளையாடுகிறான், நிலாவை அழைக்கிறான். பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி மகா கல்யாண வைபவத்திலே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம் மங்களகரமாய் முடிந்தது. இனி அடுத்து ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் பூ சேஷமாவாஹஜாமி, நாகராஜமாவாஹஜாமி, சத்சிருஷமாவாஹஜாமி, அனந்தமாவாஹஜாமி, சேஷாய நமः. இதமாசனம் சேஷாய நமः. பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி, சேஷாய நமः. புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி, சேஷாய நமः. குலோபஹாரநிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சேஷாய நமः. சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. சுப்ரீத சுப்ரசன்னோ வரதோ பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமுஷ்மினாவக ஸ்வஸ்தி தேவ்யதிதி நர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாசுரோ ததாதுர ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவேஷு சேதுனா ஸ்வஸ்தஜே வாயுருப்ரபாவஹை சோமம் ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्तय आदित्यासो उपमन्त्रः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तजे वैश्वानरो वसरग्निः स्वस्तजे देवावद्भ्रो स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रपार्ध्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति पन्तासूर्यचन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादादन्तमेमहे स्वस्तिनन्द्राक्टमरट्टने महद्भोदं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतान् ध्रुवं शुभगुं शुभम्. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அந்த கோவிந்தனுக்கு ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி அடுத்து அந்த பகவானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷத்தை சமர்ப்பிப்பதே ரக்ஷா பந்தனம் கைங்கரியம். அதையும் இந்த திரையின் வழியே நாம் தரிசிப்போம். இந்த ராமச்சந்திர பிரபுவே இந்த கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் எம் பெருமானாக அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அந்த ஸ்ரீராம பிரானுடன் பிறந்த சகோதரர்கள் தொண்டரி பொடி என்ற பட்டத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானவனே சத்ருக்னனே. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை இயற்றிய வால்மீகி முனிவரே சத்ருக்னனை மிகவும் உயர்த்தி பாவம் ஏதும் இல்லாதவன் என்றும் புலன்களை வென்றவன் என்றும் கூறுகிறார். அந்த அயோத்திய காண்ட ஸ்லோகம் பாகவத தொண்டின் பெருமையை உயர்த்தி பேசுவதாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். பக்தர்களே, மிதிலா நகரில் சீதாராம கல்யாணம் முடிந்து அயோத்திய திரும்பி பிறகு ஸ்ரீராமனின் தம்பியாகிய பரதன் தன்னுடைய மாமன் யுதாஜித்தின் அழைப்பின் பேரில் கேகய நாட்டிற்கு கிளம்பி சென்றான். அப்பொழுது பரதனுடன் கிளம்பிய சத்ருக்னனை பற்றி குறிப்பிட மேற்கொண்ட ஸ்லோகம் அவனுடைய பெருமையை முழுவதையும் 2 அடிகளில் விவரித்து கூறுகிறது. ஸ்ரீராமபிரான் கௌசல்யக்கும் பரதன் கைகேயிக்கும் லக்ஷ்மணன் சத்ருக்னன் இருவரும் சுமித்ரைக்கும் மகன்களாக அவதரித்ததை நாம் அறிவோம் அல்லவா? இவர்களுள் லக்ஷ்மணன் ஸ்ரீராமபிரானின் தொண்டவரனாகவும் சத்ருக்னன் பரதாழ்வாரின் தொண்டனாகவும் திகழ்ந்தனர். மண்ணு புகழ் கோசலை தன் மணி வயிற்றுக்கு நிகரான பெருமையை பெற்று சுமித்ரையின் திருவயிறு அதிலும் தொண்டனுக்கு தொண்டாக விளங்கிய சத்ருக்னனை பெற்றதால் சுமித்ரையின் புகழ் இமயமலை போல் உயர்ந்து உள்ளதாம். லக்ஷ்மணன் சத்ருக்னன் இவ்விருவருள் சத்ருக்னனை மட்டும் அதாவது பாவமற்றவன் என்று வால்மீகி ஏன் சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறாராம். லக்ஷ்மணன் பகவானாகிய ஸ்ரீராம பிரானுக்கு தொண்டு புரிந்து வந்தேன், ஆனால் சத்ருக்னோ அந்த பகவானுக்கே தொண்டனாகிய பரத ஆழ்வானுக்கு தொண்டு புரிந்து வந்தான். தாயூரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை தீவினை என்னை நீத்து என்று குகன் கூறியது போல கைகேயிக்கு தசரதர்
அளித்த வரத்தால் கிடைத்த கோசல ராஜ்யத்தின் அரச பதவியை ஏற்பதை பெரும் பாவமாக கருதி நிராகரித்தவன் பரத ஆழ்வான். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீராமனின் திருவடி நிலைகளாகிய பாதுகளையே சிம்மாசனத்தில் வைத்து தன்னை அப்பாதுகையின் ஊழியனாக கருதி அரசாங்கத்தை நடத்தி வந்தான். அப்படிப்பட்ட பரத ஆழ்வானின் தொண்டனாக விளங்கிய காரணத்தால் சத்ருக்னனை பாவமற்றவன் என்று வால்மீகி முனிவர் கூறுகிறார். மேலும் பரதன் கேகய நாட்டில் உள்ள தன் மாமன் யுதாஜித்தை பார்க்க சென்ற பொழுது அவன் மேல்கொண்ட அன்பினால் சத்ருக்னனை இழுத்து செல்லப்பட்டதாகவும் கூறுகிறார் வால்மீகி. ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை தம்முடைய வியாக்கியானம் ஒன்றில் தன் எஜமானன் ஊருக்கு கிளம்பும் பொழுது அவனுடைய உடைமைகளையும் கூடவே செல்வது போன்று பரதனுடன் சத்ருக்னனும் கிளம்பி சென்றான் என்று சுவாரஸ்யமாக கூறுகிறார். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை பகவத் பக்தியின் எல்லா நிலம் பாகவத பக்தி என்று கூறுவார். பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டு எவ்வளவு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் பகவானின் பக்தராகிய ஒரு பாகவதற்கு செய்யும் தொண்டே அந்த பகவானின் திரு உள்ளத்திற்கு மிகவும் உகப்பான விஷயமாகும். பகவத் பக்தியினில் மோட்சம் சித்திக்காமல் போனாலும் பாகவத தொண்டின் மூலம் நிச்சயம் மோட்சம் சிந்திக்கும் என்பது ஐயம் இல்லை. இதற்கு உதாரணமாக ஒரு நிகழ்ச்சியை கூறுகிறேன். பக்தர்களே, பெருமாள் கோவில் எனப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வரத ராஜா பெருமாளுடைய திருமேனி குளிரும்படியாக வீசிரி வீசும் திருவாலவட்ட கைங்கரியம் என்று தொண்டினை ஒரு நாள் விடாமல் செய்தவர்தான் திருக்கட்சி நம்பிகள். அவருடைய தொண்டினால் மனமுகந்த ஸ்ரீ வரதராஜரும் அவருடன் ஏகாந்தத்தில் உரையாடுவது வழக்கம். ராமானுஜரே தம்முடைய சந்தேகங்களுக்கான பதில்களை திருக்கட்சி நம்பிகள் மூலம் பெருமாளிடமே கேட்டாராம். இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த திருக்கட்சி நம்பிகள் ஒருமுறை பெருமாளை நோக்கி, அடியேனுக்கு எப்பொழுதும் மோட்சம் கிடைக்கும் என்று ஆவலுடன் கேட்க, உனக்கு மோட்சம் கிடையாது என்று கூறிவிட்டார் பெருமாள். திகைத்து போன திருக்கட்சி நம்பிகள், அடியேன் உமக்கு ஆளவட்ட கைங்கரியம் செய்கிறேனே என்று கேட்க, நீ எனக்கு விசிறுவதராக பிரதிபலனாக நான் உன்னுடன் பேசுகிறேன். வேறு யாருடனாவது நான் நேரடியாக பேசுவது இல்லையே. ஆனால் உனக்கு மோட்சம் வேண்டும் என்றால் நீ ஒரு பாகவதற்கு தொண்டு செய்தால் மட்டுமே சாத்தியம் என்று கூறுகிறார். பக்தர்களே, இதோ அந்த பகவானுக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் ரட்சத்தை சமர்ப்பித்தார் ஸ்ரீ பூமி லீலா சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாகோத்சகன்மாங்கம் உபாசனாத்யோ ஆகார கர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்மிதஜ்ஞாலயம் ப்ரோக்ஷ ஏதோன்மிந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तो इंद्र शुद्धो आग शुद्ध शुद्धाभिरूपे मयि देवान् द्रवणमाय जनतां मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होदा रावणट पूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमा नमस्कामेद्यमात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शादा पृथिवी धोकशादा पूतह्यतनेन सौम्या कृणुद्भगुं रसना होतभिगं तदे तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रेखाजा स्कंदमावाहजामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनश्चरेदो हितवज्ञनिष्यते अग्निमस्वस्तादहव्यकुं समी गर्भाजनयन्योम जोभोः कृतप्रत्येको कृतयो नग्ने कृतसमिज्ञो कृतमस्यान्नं कृतप्रशंस्मा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरिजाजक्तदेवान् आजुर्दाग्ने अभिषोजुषाणो कृतप्रतीको कृतयो नरेति तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविधप्रसुभा ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वसीम तत्सृजो वेन आवह स बुद्धया पमास्य विष्टा सदस्तयो नमस्तमः ओं ब्रह्माणमावाहजामि प्रजापतिमावाहजामि हिरण्यगर्भमावाहजामि पितामहमावाहजामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देरकं सोमो अर्वन्तमाचकं सोमो विरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं समेयं पदश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं सोममावाहजामि यज्ञाङ्गमावाहजामि इन्दुमावाहजामि चन्द्रमावाहजामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्म सोमाय नमः पाद्यं सर्पयामि अर्घ्यं सर्पयामि वाचं सर्पयामि ब्रह्म सोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमाय नमः
गुलोपहार निवेदयामि ब्रह्मसोमाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पात्रादादावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि च मनवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मनवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवमग्नं यजमानं च देहि ओम प्रणज कोवो जनत्कु सवो जनत्कु सब्जशन्तान् विशः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जशन्तान् विशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपरदौ ब्राह्मेण देवतेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपात्रक्यमावाहयामि देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिष्ठनिर्वभामि इंद्राजिष्ठनिर्वभामि अग्न्याजिष्ठनिर्वभामि सोमाजिष्ठनिर्वभामि अग्न्याजिष्ठनिर्वभामि सोमाजिष्ठनिर्वभामि अग्निसोमाभ्याकुष्ठनिर्वभामि प्रजापतिजिष्ठनिर्वभामि ब्रह्मण्याजिष्ठनिर्वभामि वसुभ्योजिष्ठनिर्वभामि रुद्रेभ्योजिष्ठनिर्वभामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुवेजिष्ठनिर्वभामि बृहस्पतिजिष्ठनिर्वभामि मित्राजिष्ठनिर्वभामि वरुणाजिष्ठनिर्वभामि आदित्येभ्योजिष्ठनिर्वभामि स्वाभ्याकुष्ठनिर्वभामि पूष्णेजिष्ठनिर्वभामि कक्षाजिष्ठनिर्वभामि कक्षदेवता सोमाजिष्ठनिर्वभामि औपासृज्ञाजिष्ठनिर्वभामि यज्ञेश्वरेभ्यो देवेभ्यो जिष्ठनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जिष्ठनिर्वभामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिसे स्वाहा अमृतुडमसि मारुडमसि अन्तरितकं रक्षो अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्षो प्रत्युष्ट आराधयः चित्पदिस्वापुना त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापुना त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्या कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नित्ये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवे नते नमः सहोदते नमः अजनाप्रे नमः विचट्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्म अनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसवितप्रसुभा ब्रह्मन्सोत्तमादास्मा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु परिदें स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासृज्ञाय स्वाहा यज्ञेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानवदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः प्राणानायम्यास्यां स्मृतिनो श्री श्रीमाधवस्वामिनः वैवाकोत्सकर्माङ्गम् उपासनाख्यो वाकारान्ते मन्त्रलोभे क्रियालोभे द्रव्यलोभे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्ये अदितेन मन्यस्म नमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म
देवसविदप्रसुमा ओं मतो देवावन्तनाय द्वाविट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानददे पदं समूढवस्कपाकुं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पस्कतेदो व्रतानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्तका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पुष्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षुरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो वण्यवोज कृपाकुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు వేమాచ్ఛాదం స్ఫటికసూర్జం విద్యుడోత్పత్తిభాజం దివ్యానాదం కుశలపరిషత్కేదండంటపాణిం వేదారావం రురిమహం వాహనం దోష్కదుష్కం బింబేజంతం వికనసమహం ప్రాప్తవంతం భజామి అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహోదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారదిక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రపదిక్తిదానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్తిలకావతే జశోమతే త్వట్టదేవ పరివ్రాజితే ఇంద్రాగ్నేమునిర్దవరుణ వాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే రమణేక్షురాసర్పిర్దదిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాకశాన్విపుష్కరాఖ్య సత్పద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్షుదింద్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుష హరీలావృత భద్రాస్మకేతుమాల హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరౌరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవందే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయ పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగద్రష్టు
परार्धे द्विमनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे हे जन्मनि च हे दक्षिण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशा परेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोकित दामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्तरे सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाच्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं भृगुवरितत्रस्य पादवे कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकनसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणकनकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसभगवत्शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सञ्चविदव्यः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्यो अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयाक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमनगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपण्डपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजोश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवच्चौन उर्ववैदलवञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदे सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातां इमां श्रीदेवीनाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। ऋग्यजुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने कात्सपावत्सारणे ध्रुवत्रजानुषेय प्रवरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदे सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवते रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेदभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्या स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशैलाय सुमेधसे प्रयदोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये पुष्पम्बरः सर्वभूतः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமான் கல்யாணத்திலே பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த பகவானுக்கும் கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை இனிதே முடிகிறது. இனி அடுத்த நிகழ்வு அந்த திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த இன்றுக்கு
தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திரு மாங்கல்யங்களை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்கள் அனைத்தையும் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. வேதங்கள் 4: ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதங்கள். அந்த எம்பெருமான் திருவாயால் பிரம்ம தேவர்களுக்கு அருளப்பட்டதுதான் வேதங்கள். இந்த வேதத்துக்கு ஆபத்து வரும் போதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவராகவும் மத்ஸ்ய அவதாரமாகவும் எடுத்து ரட்சித்தாராம். அத்தகைய உயர்வான வேதத்தை சொல்வதும் கேட்பதும் கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஆனால் கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருவதே ஏற்றம்தான். வேதம் சொல்வது என்னவென்றால், எப்பொழுது வேதத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு நாம் வேத பாராயணத்தை கேட்கிறோமோ அப்போதே அந்த பகவான் நம்மை பார்த்து விட்டார் என்று அர்த்தமாம். வேதத்தை கேட்க ஒருவருக்கு இஷ்டம் இல்லை என்றால் பெருமானின் கடாட்சம் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். பகவான் இடத்தில் துவேஷம் என்றால் கூட பகவான் பொறுத்து கொள்வாராம். ஆனால் வேதத்தின் மீது துவேஷம் வந்தால் பகவான் அதனை பொறுக்க மாட்டாராம். நரசிம்ம அவதாரத்தின் போது பகவானே இதை அருளி செய்துள்ளார். எவன் வேதத்தை நிகரிக்கிறானோ அவன் சீக்கிரமாய் அனுபவிப்பான் என்பதே அர்த்தம். தெரியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, வேதத்தை கேட்க வேண்டும். இப்போ நாம் ஹோமம் பண்ணுகிறோம் அல்லவா, அவன் சொல்லுகிற மந்திரத்தை பொருள் தெரியுமா? இருந்தாலும் ஹோமம் பண்ணுகின்ற பலன் கிடைக்கிறது. உபநயனத்தின் போது கூட பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்கிற மந்திரம் சொல்லித்தரப்படுகிறது. அதன் பொருள் அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் இல்லத்தில் முன் சென்று அதனை சொல்லும் போது அவனை பாத்திரம் நிறைகிறது அல்லவா? அப்படி அவன் அர்த்தம் இவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு புரிகிறதே. அதேபோல் ஹோமத்தின் போது சொல்லப்படும் அந்த வேத மந்திரத்தின் பொருள் அதை சொல்பவர்களுக்கோ செய்பவர்களுக்கோ தெரியாமல் போனாலும் யாரை குறித்து சொல்லுகிறோமோ அந்தந்த தேவதைகளுக்கு புரிகிறது அல்லவா? ஓடி வந்து நாம் கொடுக்கும் அவசியை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணுகிறார் அல்லவா? ஆகவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ வேதத்தை மனசு பூர்த்தியாக நாம் கேட்க வேண்டும். ஆரம்ப காலத்தில் சிந்து நதி கரையில் முனிவர்கள் வேதங்களை உருவாக்கினார்கள். பின்னர் தலைமுறையாக இதை செவியில் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள். இதை கருண பரம்பரை என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இதை தொகுத்தவர் வியாச பகவான். ஆகவேதான் அவரை வேத வியாசர் என்று போற்றப்படுகிறோம். வேதங்களை 4ஆக பிரித்தாராம். அதர்வண வேதம் மந்திரவாத பிரயோகங்கள், வசியம், ஹோமம், மோகனம் போன்ற காரியங்களை செய்வது. சாமவேதம் வேள்விகளின் போது பாட வேண்டிய கீர்த்தனைகளை சாமவேதம். யஜுர்வேதம் சடங்குகள், மந்திரங்கள் போன்றவை யஜுர்வேதம். ருக்வேதம் பொதுவான மந்திரங்கள் ருக்வேதம். இவற்றை சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் அதன் ஒரு நூலாக எழுத விரும்பினாராம். அந்த வியாசர் இதற்கு வடிவம் கொடுக்க தனக்கு உதவ வேண்டும் என்று அவர் ஒரு பிரம்ம தேவரை துதிக்க அவர் விநாயக பெருமாளை பிரார்த்திக்கும்படி கூறினாராம். பக்தர்களே, அந்த வியாசரும் கணநாயனான வழிபட அவரும் உலக நன்மைக்காக இதை செய்வதை ஒப்புக்கொண்டாராம். இதோ அந்த தாயார்களுக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பி प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता मंत्रजो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सैता सावित्री श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि.
प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजताम् पङ्प्रजो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीम् भूदेव्ये नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీ पन्नो अग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडोपजात ज्येष्ठाः यजिष्ठोवह्नि तमस्वसु चाणोश्वान् द्वेषागुंसे परमद्यस्मस्माः सत्वन्नो अग्ने वमोपबोधेनेदिष्टोब्जिस्यावततोब्जष्टौ अवजक्ष्मनो वेवृगं सुभजोनिये दुस्माः स्वमग्ने यासन् यजासन् यदः अजासन् हव्यमो शयजानो देहवेषितगुस्माः चित्तं जस्माः चित्तश्चस्माः कूतं जस्माः कूतश्चस्माः विज्ञानं जस्माः विज्ञातं जस्माः मनश्चस्माः चक्रे जस्माः पूर्णमादत्तत्वा रदन्त्रचस्माः ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सु स्वाहा तदेन्ममग्गुस्तानमदेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेहि प्राणानाञ्जा अस्यां सुपतितो श्रीनिवादस्वामिनः वैवागोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजहोमं गृह्येतेन मन्यस्मानमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा इमान् लाजानमित्यभिगार्य इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं कदं वदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नात्रवब्रोधेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्त्वमे पदरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोधेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्त्वमे पदरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोधेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्त्वमे पदरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा तदेन्ममग्गुस्ता अनुमदेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेहि
प्राणानाम्यास्यां सुमतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोचकर्माङ्गोपासनाक्तो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवड्डोहं घोष्ये अदितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुभावमतो देवावन्तनो यदो विट्रविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्माः इदं विट्रविचक्रमे त्रयदानतदेपदं समूढमस्य वाकुं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्रगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि विस्कतेदो वृदानि विस्पते इन्द्रस्वजस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे मदक्षुरातदग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रमागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा वं भूस्वाहा वं भुवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा वं भूर्भुवस्वाहा अदितेन्ममग्गुस्तानमदेन्ममग्गुस्ता सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवतविदप्रासामेः प्राणानायव्यास्यां सुपतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्मागमोपासनाख्यो उपरिट्टादन्तो होमं गृह्ये अदितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुभा तत्सक्रमणोत्तरेणितं जर्वान्मुर्भाकरम् अग्नेषु चतुर्विद्वांसर्वक्तसुखदं करोतु स्वाहा अग्नये सुतहुताहुतेनां कामानाकुञ्चमदित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमुष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्माभूदग्नस्तत् पुनरागः जातवेदाविष्टरणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे समायवाजक्तरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा वेदोषेदिसीमहे स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमये स्वाहा यमस्य देव मृत्योर्भवाय स्वाहा सोमस्य चित्तमेवाय स्वाहा वायोर्देवहे प्राणात्मेवाय स्वाहा ब्रह्मणोदेवहे बुद्धिमेवाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा जन्त सप्तजोनिर्राट्पणस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तस्वाहा वेदर्भक्तस्वाहा जोर्भक्तस्वाहा पृथिवीभक्तस्वाहा अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जोर्जैनं पृथिवीजैनं ओषधसप्तचैवजैर्नग्स्वाहा प्रदान विद्वानट्टप्रदेन पूर्णमहद्योन्महसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजुहोमि स्वाहा अग्निस्वप्यतो वेदस्वप्यतो दोषस्वप्यतो पृथ्वीस्वप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्ममग्गुस्तानमदेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवतविदप्रासामेः आवाह्य देवताभ्यो नमः यदा सुखमदास्तानमृतिट्टामजां क्षोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च पश्चिमदप्रतिमपणया दक्षिणदप्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोस्तोभोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोभोसे वन्दिं वृत्सृज्याभ्यः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जहोते आप्यायन्तामा भवोषधयोमृताम् शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनो भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमार्तजोद्भूतिः आदत्तः सोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपश्चत्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तत्रयाजुषं दीर्घायुत्माजा बलाजा सताजा सदन्तवत्यक्षेत्रजाजुषं आबोधुट्टामजोपस्थानवोर्धे ददातना महेरणाय दक्तषे योवस्यवदमोरधस्तक्तमातरः मातरः तस्मा अरङ्गमामबोधस्तक्तजाजुषन्वद आपो जनकदाचनः
మంత్రహేణం క్రియాహేణ మత్తేహేణం కృతాసనాత్కృతంతమజాదేవా పరిపూర్ణస్వతస్తమై ప్రాయశ్చిత్తాని శేషాని హోమ కర్మానివాణమై తాని శేషాని శేషానా శ్రీకృష్ణా స్ఫురణం పదం కాయేన వాచామనసేంద్రియమాబద్ధాత్మనావా సుకృతే సమావాత్ కరోమి యద్ద సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయ సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునర్పాద్యం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యదాస్కమదాస్థాన ప్రతిష్టాపయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః గులోపహార నివేదయామి ఆద్యోపహారం సమర్పయామి तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த திரு கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாஹத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த பெருமானின் அடுத்த நிகழ்வு அந்த ஆண்டாளுக்கு கனவில் தோன்றி அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். அதே இந்த வாரணம் 1000 என்பது. 10 பாசுரங்கள் உள்ளன. அந்த பாசுரத்தை தினமும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்து வருவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, வாரணம் 1000 என்கிற அந்த கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வு மாலை மாற்றுதல் என்கிற இனிமையான கட்டம். மலர்களில் பல நிறம் கண்டேன், மாலவன் வடிவம் அதில் கண்டேன் என்ற சொல்லுக்கு இறைவனுடைய வழிபாட்டில் மலர்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று பொருள். மலர்களுக்கு மனிதனுடைய எண்ணங்களை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. பெருமாளிடம் எனக்கு நிறையா பொருளை கொடு, தனத்தை கொடு என்று வேண்டிக் கொண்டு மலர்களை சமர்ப்பித்தால் அவனுடைய பிரார்த்தனை பெருமாளை சென்றடையும், பலனும் உடனே கிடைக்கும். இது மலர்களால் செய்யப்படும் அர்ச்சனையின் ரகசியமும் கூட. பக்தர்களே, அப்படி அந்த திருமணங்களில் மாங்கல்ய தாரணத்திற்கு முன் மலர் மாலைகளை மணமக்கள் மாற்றிக்கொள்வார். மலர்களில் உள்ள நறுமணத்தின் வாசனை என்றும் ஒவ்வொருவருடைய இயல்பும் ஒரே மாதிரி இல்லை. அதற்கு காரணமே மனதின் தொகுப்புக்கு வாசனை என்று பெயர். அப்படி இதோ இந்த பெருமான் அந்த நறுமண மலர்களை மாலைகளாக அணிந்து கொண்டு அந்த பகவான் இதோ தான் அணிந்த மலர் மாலையை அர்ச்சக சுவாமியின் மூலமாக ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அனுப்புகிறார். அதே போல் பெருமாள் அனுப்பிய மாலையை தாயார் சூடிக்கொண்ட பின் பெருமாளுக்கே அனுப்புகிறார். மறுபடியும் பெருமாள் பூதேவி நாச்சியாருக்கு அனுப்புகிறார். தாயார் தான் சூடிக்கொண்ட பிறகு பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறார். இப்படி மலர் மாலைகளை மாற்றிக்கொண்டு மிகவும் இனிமையான இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்கவே இந்த மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சியை நாம் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, நாமும் கூட அந்த பகவானுடைய அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டு அந்த கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற அந்த நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லுவோம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் தலம்பராளு என்கிற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. மங்கள அக்ஷதத்தை பெருமானின் திருவடிகளிலும் தாயாறுகளின் சிரசுகளிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி சேர்க்க உள்ளார். அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ